इच्छा करने से देखो अपूर्व की अभ्यंतर है भाइयों छम अपने रही धनकिंची अपत्यम प्रपत्यम भक्ति पाणे विणे भयावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्वासे उरिवासे धनकिंची मंत्र विणे परिणाम सुमुमा गायका तुभ्ये ज्ञानम अहम न ज्ञानानि तस्मै इच्छा में परमात्मा वंदे विजय से अथर्वण सूक्ष्म है इच्छा में परमात्मा वंदे विजय से अथर्वण इच्छा करने से देखो वायना सती सब इच्छा में परमात्मा वंदे विजय से अथर्वण इच्छा करने से देखो वायना यीशु इच्छा में परमात्मा वंदे विजय से अथर्वण इसका ये मतलब है वायना का प्रसाद से सोचो नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसावणो एसो पंचनमुकारो सर्वभावपणासनो मंगलानंच संबेशिव पद्मो हवै मंगलो नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे आरते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया मोहो भयो जय सुवाणं भवो तित्तराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमंसीय पौमा वै पमवनी सेवीय पाया ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वच्चेની જગ્યા ભરી દેવા વિનંતી છે ભાગ્યશાળી ખૂબ આગળ જવાની નંબર વિનંતી વચ્ચેની જગ્યા પધારી જવા નંબર વિનંતી તો કેવી આજની સભા ખૂબ સુંદર મનોભાવમાં સુંદર પરમાત્માના વચનમાં જતા પહેલા કેટલી જાહેરાત આવશ્યક છે આગળ આવીએ ભાગ્યશાળી વચ્ચેની જગ્યા બધી ભરી દેજો પ્લીઝ હાજી આજે પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન જે ભાવ લઈને પધારશે મનને મંદિર કઈ રીતે બનાવી શકાય એ વિષયમાં પ્રવેશ થશે તે પહેલા આવતીકાલે શેર બજાર બરાબર 8:30 કલાકે શેર બજાર દ્વારા પરમાત્માના વચનમાં પ્રવેશ 11 ની ટીમ દ્વારા જે તે અદ્ભુત વાતાવરણ છે બરાબર 8:30 કલાકે શરૂ થઈ જશે એટલે બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે સભા માટે વધારી જવા વિનંતી છે ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ 11,000 રૂપિયા સેકન્ડ પ્રાઇઝ 7,000 રૂપિયા આજે આપણા શ્રી સંઘના મહેમાન તરીકે જે પધારેલા શ્રી પ્રકાશભાઈ વસા શ્રી કલ્પેશભાઈ વી શાહ શ્રી જયેશભાઈ ભંસાલી શ્રી પ્રકાશભાઈ શાહ નગેતરા આ બધા મહાનુભાવો શાસન સેવક છે અમે તમને એવું કહીએ કે આપણે કદાચ શાસન માટે 2-5 મિનિટ સંસારમાંથી કાઢતા હોઈશું અને આ બધા મહાનુભાવો શાસનમાંથી સંસાર માટે 2-5 મિનિટ કાઢતા હશે આસે કલ્પેશભાઈ કે જેમને બહુ જબરદસ્ત સાધન ભક્તિનું કાર્ય કર્યું છે આપણને ચાતુર્માસ ગુરુ ભગવંતનું મળે તે માટે આપણને ચાતુર્માસ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંતનું મળે તે માટે એમના મરણના ભાવ પરમ પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય જયઘોષ સુરેશ્વરી મહારાજે જે એમને મરણના ભાવ રજૂ કર્યા અને રજૂ કર્યા બાદ આપણા માટે જે કંઈ કર્યું છે બસ આપણને આ ગુરુ ભગવંત મળ્યા છે એ જ શ્રી કલ્પેશભાઈને હું વિનંતી કરીશ કે એમના હૃદયના ભાવ એમનું શરીરનું એક એક અંગ માત્ર શાસન માટે છે બસ આજે એમના કંઠને આપણે માની શ્રી કલ્પેશભાઈને વિનંતી કરીશ
જે સાધવી ભક્તિ અઠવાડિયાની ચાલે છે અને જે સાધવી ભક્તોને અને પૂજ્ય ગુરુ ભગવાનનો લાભ મળે એવા શ્રી સીતાબેન અક્ષયકુમાર ગાંધી 15 તારીખથી 21 તારીખ સુધી એ ખૂબ ખૂબ અગત્યની અનુભવ શ્રી કંકુજીને માનું પરમાત્માના શાસનમાં કદાચ કલ્પી ન શકાય એવા જાત જાતના વંદનીય ચમત્કારો થાય છે. આપણી આગળ એક ચમત્કારોને જોવા માટેની દ્રષ્ટિ જોઈએ છે. હાથમાંથી કંકુ નીકળે ચમત્કાર આંખ જોઈ શકે છે, પણ આંખમાંથી વિકાર નીકળે ચમત્કાર જોવા માટે દ્રષ્ટિ જોઈએ છે. આવા ચમત્કારોની હારમાળા 1964ની સાલમાં અનંત ઉપકારી ગુરુદેવ ભુવનબાનું સુરેશ્વરજી મહારાજની પાવન નિશ્રામાં અચલગઢ મુકામે શિબિર થઈ ત્યારથી એક હારમાળા સર્જાતી જ ચાલી. અત્યારે એ બધી વાતો કરવાનો સમય નથી, પણ આ વાત મારે એટલા માટે કરવી છે. અહીંયા બેઠેલો કલ્પેશ બાયપાસનું ઓપરેશન આવ્યું. ડૉક્ટરે કોમ્પ્લિકેટેડ સ્થિતિ બતાવી અને ઓપરેશન થિયેટરમાં જતા પહેલાં માનસિક સ્તરે એક સંકલ્પ કર્યો, આ ઓપરેશન સફળ થાય કે નિષ્ફળ થાય, થિયેટરમાંથી હું પોતે જીવતા આવું કે ડેડ બોડી આવે, એક કાગળ ઉપર લખીને થિયેટરમાં દાખલ થયો. ગુજરાતના ગામડાના 5000 જેટલા સાધર્મિકો, 1 2 3 4 5 નહીં, 100 200 300 500 નહીં, 5000 સાધર્મિકોને એમના ઘરે જઈ 1 લાખ રૂપિયાની ભેટ આપી 50 કરોડ રૂપિયા બાયપાસના ઓપરેશન. અને બાયપાસના ઓપરેશનમાંથી હેમખેમ બહાર આવ્યા પછી કુમારપાળવી શાહ, જયેશ, પ્રકાશ, આ બધાની ટીમ ગામડું ગામડું ઘર ઘર ખૂંદીને 1 લાખ રૂપિયા તિલક કરીને સાધર્મિકોને આપ્યા. 50 કરોડ રૂપિયા વગર નામે વગર તકતીએ આ કાળમાં આપવા, એ ચમત્કારને જોવા માટે આપણે આગળ એક દ્રષ્ટિ જોઈએ છે. આવો એક ચમત્કાર કરીને બેઠેલો કલ્પેશ વર્ષોથી પરિચયમાં છે. કાવી શિબિરની શરૂઆત પહેલાં દારૂ પીને જે છોકરો આવ્યો હતો અને એ યુવાનમાં આ પરિવર્તન આજના કાળે શક્ય બન્યું, એ આપણા અહીંયાને એક આશ્વસ્ત કરે છે કે ઘણું સારું બની શકે, જે આપણે સારા બનવા તૈયાર હોઈએ તો. આજે 2-5 મિનિટ કલ્પેશને આપી છે બોલવા માટે. નાનક सरस्वती लब्ध प्रसाद राष्ट्रहित चिंतक, लाखों युवाओं राहबर, शासन प्रभावक आचार्य भगवान रत्न सुंदर सुरेश्वरजी महाराजा, परम पूज्य पदस्थो पूज्य मुनि भगवंतो, पूज्य शास्त्री जी भगवंतो અને વડોદરાના ધર્મ પ્રેમી ભાઈઓ અને બહેનોને આજે વંદન કરવા આવ્યો છું. તાંબાનું પતરું એ જાડા પતરાને લઈ અને નદી કે દરિયા કિનારે જઈએ અને પતરાને નદી ઉપર કે દરિયા ઉપર મૂકવાનું કરીએ, એ ડૂબી જશે. પણ એ જ પતરાને જો ઘાટ આપવામાં આવે, એને ઘડવામાં આવે અને સરસ મજાનો કુંભ બનાવી દેવામાં આવે,
અને પછી એ નદી કે તળાવ ઉપર દરિયા ઉપર એ ગળાને મૂકીએ કે ડૂબી નહીં જાય, કે તળાવ વગર નહીં રહે. આપણે બધા જ પત્રના સ્વરૂપની અંદર આચાર્ય ભગવાનના પ્રવચન સાંભળવા માટે સમગ્ર વડોદરાથી નહીં, આસપાસના ગામડાઓમાંથી દૂર દૂરથી પત્રના સ્વરૂપે આપણે આવ્યા છીએ અને આચાર્ય ભગવાન પ્રવચનના માધ્યમે સરસ મજાનો આપણો એવો ઘાટ ઘડે છે, એવા સંસ્કાર આપવાનું કામ કરે છે. પછી ડૂબી જવાનો ભય રહેવાનો નથી. આપણે પણ એ સંસાર કરીને જતા રહીશું. આપણને ડૂબવાની કોઈ શક્યતા નથી. એવા આચાર્ય ભગવાન 16 વર્ષની વિનંતી પછી વડોદરા શ્રી સંઘમાં પધાર્યા છે. આચાર્ય ભગવાનની સાથે 1981ની સાલથી જોડાવાનું થયું. આટલા વર્ષોનો જે પરિચય, જે આચાર્ય ભગવાનની નિષ્ઠુરતા, રત્નત્રય ટ્રસ્ટના માધ્યમે કરોડો પુસ્તકોના પ્રકાશન થયા, પણ સાહેબની જે નિષ્ઠુરતા છે, આજ સુધી ક્યારે પૂછ્યું નથી કે આ પુસ્તકની કેટલી નકલ અને આ પુસ્તકની શું કિંમત. આટલા વર્ષોમાં ક્યારે પણ બેલેન્સ શીટ શું કહેવાય એ હજી ક્યારે પણ એમને હાથમાં લઈને જોયું નથી. આવી નિષ્ઠુરતા જેઓના જીવનમાં છે, એવા સરળ છે. અને પ્રવચનના માધ્યમથી તો આપ સાંભળી જ રહ્યા છો કે આચાર્ય ભગવાનના વરદ હસ્તે સુંદર પુસ્તકોનું પ્રકાશન થઈ રહ્યું છે. આજે વડોદરા આવવા માટેનું એક કારણ એ હતું, આચાર્ય ભગવાનની પાસે બહુ ગંભીર વાત કરીને હું આપની સમક્ષ ઉભો થયો છું. આચાર્ય ભગવાનનું મન માનતું ન હતું. ઘણા વખતથી અમે આ વારંવાર રજૂઆત કરતા હતા, પણ આચાર્ય ભગવાન ક્યારે પણ અમને ગ્રીન સિગ્નલ નતા આપતા. ટ્રસ્ટ ઉપર આપણે બેઠા હોઈએ, કેટલાય લોકોના ટેલિફોન આવે, કેટલાયની ટપાલો આવે. સાહેબનું જેવું પ્રવચન છે એવું જ એમનું લેખન કાર્ય છે. એટલા સુંદર મોતી જેવા અક્ષરમાં એમના પુસ્તકો લખાતા હોય અને લોકોની ડિમાન્ડ એવી આપવા માંડી કે જે આજીવન સભ્ય 5000 રૂપિયા ભરીને આજીવન સભ્ય બને છે, એને તો તમે 5, 7, 10 જે હાજર હોય એ પુસ્તક આપો છો. 300 પુસ્તક પ્રકાશન થઈ ગયા અને જૂના પુસ્તકોનું અમારે વાંચન કરવું હોય તો આપણી પાસે એનો કોઈ સ્ટોક નથી. એવા કેટલાય પુસ્તકો છે કે જેની લાખો નકલો આવૃત્તિની આવૃત્તિ છપાવતા ગયા, પણ આપણી પણ ટ્રસ્ટની મર્યાદા હોય છે. લખી રાખો આરસની તકતી ઉપર, માતા પિતાના ઉપકાર ઉપરનું એક પુસ્તક લાખો નકલો છપાઈ ગઈ, પણ આજે પણ સ્ટોકમાં 100 નકલ ન મળી શકે. સાસુ વહુ ઉપરનું પુસ્તક જ્યારે નીકળી જાય છે, આજે આપણી પાસે એની કોઈ નકલ નથી. 300 પુસ્તકો ઘણા બધાની ડિમાન્ડ આવી. એક સૌરાષ્ટ્રના પટેલ ભાઈ ખેડૂત એક દિવસ અચાનક ટ્રસ્ટના કાર્યાલય પર આવી ગયા. કાર્યાલય પર મારા ભત્રીજા પલકભાઈ ત્યાં બેઠા હતા અને પટેલ ભાઈ ખેડૂત ચોધાર આંસુએ રડી પડ્યા. આ જીવન સભ્ય બન્યો તો તમે જે 10 પુસ્તક મૂક્યા એ બધા પુસ્તક મેં વાંચી લીધા, પણ આચાર્ય ભગવાનના 300 પુસ્તક તમારે જે ડિમાન્ડ લેવી હોય લો, પણ તમે મને પુસ્તકો આપો અથવા સ્પેસિફિક કોપી આપો, હું ઝેરોક્સ કરાવીને તમને પાછા આપીશ.
પણ શક્ય નહોતું. આપણી કોપીઓ કઢાવી તો એમાં પણ કેટલાય પુસ્તકો મિસ થયેલા હતા. 300 પુસ્તકો એક સાથે ન મળી શકે. 20-25 મિનિટ સુધી આચાર્ય ભગવાનને અત્યારે વિનંતી કરી કે સાહેબ આ અમારો ટ્રસ્ટનો સંસારીઓનો વિષય છે. લોકોની ડિમાન્ડ જૂના સાહિત્યની જૂની બુકોને વાંચવા માટેની લોકોની ઉત્કંઠા. આપ આની અંદર અમને રજા આપો. અને ઘણી વિનંતી પછી આજે સાહેબે કચવાટા મને એમને હા પાડી કે જો તમે આ વ્યવસ્થાને સંભાળી શકતા હો તો તમે આગળ વધજો. મારી એવી ઈચ્છા છે કે ભારતભરની અંદર અને દેશ અને વિદેશની અંદર એક અન્ય ચેનલના માધ્યમથી ગુરુદેવના પ્રવચન 9 થી 10 વાગે હરિયન ચેનલ ઉપર કરોડો લોકો એ પ્રવચનને સાંભળે છે અને એ લોકો ઓનલાઈન ઈમેલ પર ઓર્ડર આપે છે અને આપણે એમને પુસ્તકો જે મોકલીએ છીએ વાંચ્યા પછી એમની પણ ડિમાન્ડ આવતી હોય છે. આ બધાનો અભ્યાસ કર્યા પછી આજે જ સવારના આજનો શુભ દિવસ છે. સિદ્ધિ યોગ છે, રાજ યોગ છે. અત્યારનો સરસ મજાનું ચોઘડિયું હતું અને આપણે નક્કી કર્યું કે આજે જ વડોદરાની ધર્મ પ્રેમી આ સભાની અંદર પહેલી વખત આની જાહેરાત થાય. અને એટલા જ માટે હું ઉભો થયો છું કે આચાર્ય ભગવાનના ભરત હસ્તે લખાયેલા 300 પુસ્તકનો સેટ ઘરે બેઠા હોમ ડિલિવરી સ્વરૂપે પહોંચાડવા માટે એક યોજના 21,000 રૂપિયા કોસ્ટ ટુ કોસ્ટ, નો પ્રોફિટ નો લોસ. માત્ર આવું સરસ મજાનું સાહિત્ય લોકોના ઘરે ઘરે પહોંચી શકે, અલગ અલગ વિષયોને જાણી શકે, વાંચી શકે, એમના પરિવારને વંચાવી શકે એ જ ભાવનાથી 21,000 રૂપિયામાં 300 પુસ્તકોનો સેટ વહેલા તે પહેલાના ધોરણે માત્ર 500 નકલ 500 સેટ આપણે એને તૈયાર કરાવશું અને 21,000 રૂપિયામાં ઘરે બેઠા એને પ્રિન્ટિંગ કરવામાં 300 પુસ્તક છે, છાપવામાં પણ વાર લાગશે. મિનિમમ 10 થી 12 મહિના આની અંદર આપણને લાગશે, પણ ઘરે બેઠા પહોંચાડવાની જવાબદારી રત્નત્રય ટ્રસ્ટ લેશે. અને એ જ વાતને આજે આપણે લોન્ચ કરીએ છીએ. માત્ર 10,000 રૂપિયા ડિપોઝિટ આપવાની રહેશે, એની રસીદ મળશે, આપનું પરમેનન્ટ સરનામું લખવામાં આવશે, મોબાઈલ નંબર લખવામાં આવશે અને જ્યારે પુસ્તક છપાશે ત્યારે હોમ ડિલિવરી કરવામાં આવશે. એ વખતે બાકીની રકમ જે 11,000 રૂપિયા હશે એ પણ કલેક્ટ કરવામાં આવશે. આ 21,000 રૂપિયાના નામ વડોદરાની ધર્મ પ્રેમીના સભાની અંદર જેની પણ મનમાં ભાવના હોય, આપણી પાસે સમય બહુ ઓછો છે. के बाद पोस्टमैन के हाथ में खत आया. एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में शायद पत्र लिखना अभी बंद हो चुका है. प्लस माइनस क्या उनकी बात भी मैं निकलना चाहता हूँ. वो पोस्टमैन खत लेकर के गया एड्रेस पर, घंटी बजाई, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट न दरवाजा खुला. पोस्टमैन को लगा न मालूम शायद घर में कोई नहीं होगा, मगर दरवाजे पे ताला तो था नहीं. शालीन पोस्ट मास्टर था, खड़ा रहा. 5 मिनट 7 और 10 मिनट तक खड़े रहने के बाद दरवाजा खुला. 12 साल की एक बेटी थी, दोनों पैर शायद कटे हुए थे, ऐसे ही जमीन पे लेट लेट करके आ रही थी. और पोस्टमैन को कहा, आने में लेट हुआ, मम्मी नहीं है घर में, पिता भी नहीं है, भाई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ. 2 टाइम बाजू वाली कोई बहन आकर के रसोई करके जाती है, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर लगी, माफ़ करना. पोस्टमैन को लगा अच्छा हुआ. 10 मिनट रुका. आखिर 12 साल की बेटी के चेहरे पे मुस्कान तो आई और वो गया. 5 दिन के बाद फिर पत्र आया.
और 1 महीने में करीबन 4 पत्र उनके नाम पे आया और पोस्टमैन आते रहा। किसी ने पूछा, यार 10-10 मिनट वो लड़की लगा रही है, फिर भी तू क्यों जाता है? लगता है कि मेरी ही प्यारी बेटी हो। उनके चेहरे की मुस्कान, निर्दोषता देखने के लिए जा रहा हूँ, भले 10 मिनट रुकना पड़े, कोई प्रश्न नहीं है। और वो लड़की और पोस्टमैन को एक लगाव हो गया। लगाव होने के बाद एक दिन ऐसा हुआ, 2 महीने के बाद वो पोस्टमैन पत्र लेकर के गया। लड़की ने कहा, चाचा एक काम करेंगे क्या? आपको दिवाली के दिन मेरे नाम से कोई पत्र आवे या ना आवे, मगर आपको निश्चित तौर से आना है। काम क्या है? काम मैं फिर बताऊंगी, मगर आपको आना है। और वो पोस्टमैन दिवाली के दिन सचमुच इन पर किसी ने पत्र लिखा था, वो लेकर के आया। और जैसे ही पत्र आया, वो लड़की नीचे आई, पत्र लिया और पत्र लेने के बाद पोस्टमैन को कहा, अंकल मेरी ओर से ये गिफ्ट। क्या है? आप घर पे जाकर के खोलना। मैं अभी कुछ बताना नहीं चाहती, बस आप घर पे जाकर के खोलना। और लिपमैन ने घर पे, वो पोस्टमैन ने घर पे जाकर के गिफ्ट खोली। हैरान, एक खत था अंदर और ये लड़के ने लिखा था कि आप मई महीने में और मेरे वहां पत्र देने के लिए आए और मैंने आपके पैर को देखा। आपके पैर में न चप्पल थे न बूट थे। मेरी जैसी बेटी पर एक लगाव होने के हिसाब से इस धूप में नंगे पैर आप पत्र देने के लिए आ रहे थे और मुझे लगा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ क्या? और बाजू वाली जो बहन मेरे घर में रसोई बना के जाती थी, उनके घर में मेरी जैसी लड़की थी और उनको मैंने एक बार बुलाया और एक कहा, ये प्रीमाइसिस जो मेरी है ना, बिल्कुल मिट्टी वाली है, वहाँ कोई टाइल्स नहीं है। और आप जब भी आते थे वो मिट्टी पे आपके पैर के निशान पड़ते थे। बाजू वाली लड़की को मैंने इतना कहा, वो पोस्टमैन जो अंकल आते हैं ना, और वो जाने के बाद इनके पैर के जो निशान पड़ते हैं ना, एक बार तू कैनवास पे वो निशान ले ले। और वो पत्र वो पोस्टमैन पढ़ते रहा और पढ़ते पढ़ते उसने आगे पढ़ा कि आप इतनी धूप में मेरे घर प्यार को लेकर के आ रहे थे और मुझे लगा मैं आपको एक छोटी सी बेटी तो क्या गिफ्ट दे सकती हूँ, मगर बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि नंगे पैर आपको ना आना पड़े, इसलिए मेरी जैसी बेटी की ओर से आपको एक चप्पल में भेंट देना चाहती हूँ। आपके पैर का माप मैं लेने के लिए तैयार भी नहीं था, आप मुझे देते भी नहीं, मगर वो पैर का माप वो लड़की ने ले लिया। और आपको मैं कहना चाहूँगी, मुझे एक चमड़े का एक मत, मेरे पास एक विजन भी है और आपके पैर का चप्पल मैंने खुद ने ही बनाया है। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, अब जब भी आओ आप पैर में चप्पल पहन के आओ, ताकि मुझे भी लगे कि मेरी गिफ्ट आपने स्वीकार लिए। और पत्रकार रोने लगा। अभी मैं बात करना चाहता हूँ, पत्रकार वो पोस्टमैन अपनी पोस्ट ऑफिस में जाकर के इतना कहा, अभी एक काम कर सकते हो तो करो, मेरी ओर से दूसरे पोस्टमैन को मार रख दो, अभी मैं नहीं जा पाऊंगा। रीजन क्या है? और ये रीजन मैं आपको बता नहीं सकता, मगर मेरा कॉन्शियस ना बोलता है। वो पोस्टमैन का लीडर भी अच्छा था, उसने बजा, आप रीजन तो बताओ। नहीं जाने के पीछे कारण क्या है? तो कारण फिर उसने दास्तान बताई। 4 महीने से मैं खत देने के लिए जाता हूँ, 10 साल की लड़की है, दोनों पैर कटे हुए, और इनका पत्र पढ़ो। मेरे पैर में चप्पल नहीं थे, इसलिए उन्हें अपने खुद ने चप्पल बना दिए। अपनी 10 साल 12 साल की सखी के साथ कैनवास पे उसने मेरे चिन्ह ले लिए और चिन्ह लेकर के उसने चप्पल बना दिए। और अभी ये लड़की के पास मैं नहीं जा सकता हूँ। कारण क्या है? लड़की के पास तो तुम्हें जाना चाहिए। और जैसे ही बोला कि जाना चाहिए, आपकी बात बराबर, मगर वो रो पड़ा और रोते रोते हाथ जोड़ के इतना ही कहा, वो लड़की ने मुझे चप्पल दिया मगर मैं उनको पैर नहीं दे सकता हूं और इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। एक बात बताना चाहता हूं, तीर्थ में मंदिर हम कभी कभार जाते हैं, 12 महीने में एक बार जाते हैं तीर्थ के मंदिर में। और वो भी समय चाहिए, संयोग चाहिए, संपत्ति चाहिए, सब चाहिए। हम समेत शिखरों पांव पर कब जा पाएंगे? पैसा भी तो होना चाहिए, इससे तो नहीं जा पाएंगे। एक है तीर्थ का मंदिर, नंबर 2 एक संघ का मंदिर। आप 1 किलोमीटर 2 मीटर 3 किलोमीटर रहते हो और वहां जाकर के संघ के मंदिर में जाकर के प्रभु के दर्शन कर सकते हो। नंबर 3 है घर मंदिर। तीर्थ का मंदिर बहुत दूर है,
गृह मंदिर भी संघ का मंदिर भी मे भी पॉसिबल आधा पौने किलोमीटर है, और कभी कभार आप न भी जा सकते, मगर तीसरे नंबर का मंदिर है गृह मंदिर, घर में ही मंदिर है। आज जब चाहो रात को 12 बजे भी खोल दो तो घर के मंदिर में जाकर के प्रभु का दर्शन कर सकते हो, मगर एक चौथे नंबर का मंदिर है, वो है मन मंदिर। एक तीर्थ मंदिर, नंबर 2 संघ मंदिर, नंबर 3 गृह मंदिर, और चौथे नंबर का है मन मंदिर। और इसी हिसाब से परमात्मा को प्रार्थना महापुरुष ने किए, आवो प्रभु मुझे मन मंदिर है रे। भगवान आपके मंदिर में तो बहुत बार आया, और कभी कभी मैं आपको भी तो पूछना चाहता हूं दीपक भाई, आप आपके घर में, आप किसी के घर में 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 15 बार 20 बार गए और चाय पानी पी के आए, कभी ना कभी आप बोलेंगे कि नहीं कि मेरे घर पे आओ? हाँ बोलो कि ना बोलो? पक्का? माने किसके घर में 10 12 15 बार जाने के बाद 1 बार तो आप शायद बोलेंगे ना कि कभी ना कभी तो मेरे घर पे आओ। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, जन्म से लेकर के इतनी बार भगवान के मंदिर में तुम गए, कभी भगवान को कहा भगवान कभी तो मेरे मन में आओ? आपके वहां तो मैं कितनी बार आया, 1 बार तो आओ मेरे मंदिर में। मेरे मन को मैं मंदिर बनाना चाहता हूं, मगर मन मंदिर ऐसे नहीं बनता है। मन को मंदिर बनाने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। भगवान, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, सब बोलो, भगवान आना नहीं चाहते हैं या भगवान को हम लाना नहीं चाहते? गंभीरता से, नो कमेंट। भगवान मेरे मन में आना नहीं चाहते या भगवान को मेरे मन में मैं लाना नहीं चाहता हूं? गंभीर प्रश्न, नो कमेंट। भगवान आना नहीं चाहते कि आप लाना नहीं चाहते हो? जवाब चाहिए। इतनी बड़ी सभा भगवान को लाना नहीं चाहते कि भगवान आना नहीं चाहते? सीधा जवाब। क्या समझ? दुनिया भरनी अक्कल लीने बैठा जा लोग। तुम्हें कोई बेवकूफ माने, तुम यहां जानबूझ करके बेवकूफ बनते हो, बाकी तो तुम इतने होशियार हो के मुझे भी कभी डब्बे में डाल देते हो। हाँ, सच बोलो, एक सीधा साधा प्रश्न, इसमें तो कोई शास्त्र की बात भगवती आचार्य स्वीकृत की मैंने की नहीं है। सीधा प्रश्न, भगवान आना नहीं चाहते कि हम लाना नहीं चाहते? नरेंद्र मोदी को आप लाना चाहते हो, मे बी पॉसिबल, मगर वो आना नहीं चाहता है। ओके, और इनके लिए भी बहुत कंडीशन लेकर के बेटा, किस कारण से तो मुझे तेरे घर पे आमंत्रण था, आई वुड नॉट लाइक टू कम, 50 करोड़ की ऑफर कर दो, मगर मोदी बोल सकते हैं कि मुझे नहीं आना है। मगर मैं आपको पूछना, सच बोलो, भगवान को हम लाना नहीं चाहते कि भगवान आना नहीं चाहते? क्या हमारी करुणता? भगवान बोलते कि जिस दिन तेरा आमंत्रण रहा, 1 मिनट के लिए मैं भी डिले नहीं करूंगा, उससे ही मिनट तेरे मंदिर में मन में आ जाऊंगा। मगर हम इतने बेवकूफ, निकम्मे, बदमाश, सारी दुनिया के मालिक परमात्मा खुद मेरे मन में आना चाहते, और हमने भगवान को बोल दिया भगवान आपकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। भाई, यहां बैठने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, भगवान क्यों नहीं चाहिए मन में? आज वो आंसर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम भगवान को क्यों नहीं चाहते? जब 3 जगत के नाथ, 50,000 केवल नानी के गुरु गौतम स्वामी के भी गुरु भगवान खुद आना चाहते, हम ना बोल के बैठे भगवान आप मेरे मन में मत आओ। एनी रीजन फ्रॉम यू? भगवान को मन में लाने से ना बोलने की पीछे राज क्या है? नहीं, पहले इतना बोलो, लाना चाहते हो, आना चाहते, भगवान तुम लाना चाहते हो, बस सीधी बात, 2 ही बात बताओ। भगवान आने के लिए तैयार है, तुम लाने के लिए तैयार हो? भगवान की बात, तेरा पैसा तो सच बताऊं, तू कुत्ते के सामने लाख रुपया की नोट रख दे, कुत्ता सूंघेगा भी नहीं। क्या पैसे के पीछे पागल? तुम जितने पैसे के पीछे पागल बनते हो ना, कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पास कुछ अक्कल बक्कल भी है कि नहीं। और एक बात बताओ, सच बोलो, प्रशांत भाई बोलो, आप पर जिनका प्यार हो उनसे आप प्यार करेंगे क्या?
आप एक बार प्यार करके दो, 2 बार दो, 3 बार दो, और आपके प्यार का कोई प्रतिभाव ही न दे और निगलेक्ट करते रहे, आपके सामने वो आंख बंद करके बैठे, तुम जितना भी मरो इनके पीछे, वो आपके सामने देखे भी नहीं, फिर इतने इनके पीछे पागल बनेंगे क्या? दीपक भाई बनेंगे? काज मुझे इतना दो, जब से तुम्हारा मैच्योरिटी हुई तब से तुमने इतना पैसे पे प्यार किया, पैसे ने कभी तुम पर प्यार किया? क्या है पैसा? क्या है? उनको भी अक्ल है कि किसके पीछे पागल बनने की जरूरत नहीं है, तुम तो इससे भी गए। एक पैसे को भी अक्ल है कि ऐसे लोगों के पीछे पागल बनने की जरूरत नहीं है। तुम क्या लेकर के बैठे मुझे समझ में नहीं। हमारे जीवन की सबसे ज्यादा से ज्यादा करुणता कोई हो, एक ही करुणता, भगवान आना चाहते हैं, हम लाना नहीं चाहते। आवो प्रभु मुझे मन मंदिरे रे समरावु सम की तवास हो मुनिन। भगवान घर में आते तो भगवान को आने के लिए एक थोड़ा व्यवस्था हमें बनानी पड़ती है। 3 जगत के नाथ भगवान अपने घर में ऐसे तो नहीं आएंगे, भगवान देखेंगे घर का साफ सुथरा होना जरूरी है। तेरे घर में मैं आकर के बैठू, ऐसी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना। और जब तक भगवान बोलते कि यह व्यवस्था तू तब नहीं करेगा, तब तक मैं आने के लिए चाहूंगा, फिर भी मैं नहीं आ पाऊंगा। आज वो बात करना चाहता हूं, भगवान आने के लिए तैयार है, हम 5 व्यवस्था कर दे तो 5 व्यवस्था की बात आज के प्रवचन में आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। भगवान बोलते एक ताकत तेरे पास तू रख करके बैठ जा, चाहे दुनिया कैसी भी उलट सुलट ऊपर हो जाए, मगर तू बोल दे कि मेरी मानसिकता मेरे बस में है, परिस्थिति मेरे बस में नहीं है। पानी को आपने देखा होगा, पानी किसी भी बर्तन में एडजस्ट होने के लिए हर समय तैयार है। कटोरी में डालो, बर्तन में डालो, तपेली में डालो, कटोरी में डालो, पानी बोलता है मेरी ओर से कोई चॉइस नहीं है, तुम किसी भी बर्तन में मुझे डालो, आई एम रेडी टू बी एडजस्ट। भगवान बोलते तेरी मानसिकता इतनी हो, हर परिस्थिति में हैप्पी होने की तेरी मानसिकता हो। नंबर 1, मैं आने के लिए तैयार हूं, मगर एक व्यवस्था तेरी बना ले, तेरी पसंद की नहीं, जो भी आ जाए आई एम रेडी टू बी एडजस्ट। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये ताकत आपके पास है क्या? हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। पत्थर किसी भी बर्तन में एडजस्ट नहीं होता है। वो बोलेगा मेरा एक सॉलिड है मैं, और मेरी कंडीशन के हिसाब से बर्तन होगा तो मैं एडजस्ट होगा, मगर नहीं होगा। आपका मैं पूछना चाहता हूं, आपका मन पत्थर जैसा कि पानी जैसा? हम साधु को देखो, वी आर रेडी टू बी एडजस्ट इन ऑल सिचुएशन। चाहे 50 डिग्री की गर्मी गई, चाहे बड़ौदा में कोई 50 आदमी का बैंड से स्वागत हुआ, और किसी गांव में कुत्ते भी स्वागत करते हैं, बैंड नहीं होता है, नहीं समझे तुम? हाँ, बड़े वो आते भौंकने के लिए, वी आर हैप्पी। 50 आदमी का बैंड हो तो भी कोई पागलपन नहीं है, और कुत्ता हो तो भी कोई पागलपन नहीं है। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, भगवान महावीर गोचरी बेरने के लिए गए तब जितने प्रसन्न थे, उतने ही प्रसन्न जब वापिस आए तब थे। इन ऑल सिचुएशन भगवान वॉज द हैप्पी। आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास ये मानसिकता है, चाहे दुनिया मंदी हो चाहे तेजी हो, महाराज साहब मेरी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत नहीं। पूछना चाहता हूं प्रशांत भाई, मानसिकता क्या? भगवान मन को मंदिर बनाने के लिए तैयार है। फर्स्ट कंडीशन, हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। जानना चाहता हूं व्हाट इज अवर मेंटालिटी। क्या हुआ? नहीं, संसार की बात क्या? संसार में पूछी, मैं संसार में ही हूं, मोक्ष में थोड़ा गया हूं। एक बार बताओ, तू मेरे और मेरे में बहुत लंबा फर्क नहीं है। सच, जो ट्रेन चलती है ना, उसके पहले नंबर के डिब्बे में मैं बैठा हूं, 14वें नंबर में तुम बैठे हो, मगर एक ही डब्बे में हम है। हाँ, एक ही ट्रेन में। जो ट्रेन में पहले नंबर में बैठा वो थोड़ा प्लेटफॉर्म में जल्दी एंट्री लगा, और 14 नंबर पे लेट, मगर आएगा तो सच बोलो, मैं मेरी ट्रेन में आपको बिठाना चाहता हूं। यू आर रेडी? डर गए यार, क्या हुआ? मैंने यहां पहले बताया था, फिर भी आज बताऊं, इंदौर में क्या चातुर्मा था ना, मैंने बताया, एक लड़का मेरे पीछे लगा था, फिर भी बताऊं, रिपीट।
वो लड़का मेरे पीछे बहुत लगा था। एक दिन में 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ऊपर से मैं बैठता था, तो मुझे लगा कि कोई मेरा भी तो वायरस लगा है, और आने वाले दिनों में मे भी पॉसिबल कार्तिक पूनम होने के बाद वो भी मेरे साथ आ सकता है। मगर शादी किया हुआ था, और परीक्षण के बाद खुद की धर्म पत्नी को लेके आया, और उसने मुझे पहचान कराया, ये मानस साहब मेरी धर्म पत्नी है। मेरी धर्म पत्नी को कहा, आपके पति को मैं बहुत पसंद आया हूँ, और मुझे भी आपका पति बहुत पसंद है, मैं ले जाऊं? ना बोला नहीं। और आपको मालूम है, तुम पति और पत्नी दोनों हाथ में जा रहे थे ना रास्ते पे, और पति की शादी 15 साल तक हुई थी, 15 साल हुए, और फिर भी वो पत्नी का हाथ पकड़ के जा रहा था। लोगों को आश्चर्य लगा कि 15 साल के बाद रास्ते पे कोई पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के जाता है, ऐसा प्यार तो हमने देखा नहीं। तो फिर भी पति को पूछा, अभी तक तुम्हारा इतना प्यार है तो ये प्यार बार की छोड़, शॉपिंग के लिए कहीं घुस न जाए, इसलिए पकड़ के रहा। और वो लड़के को मैंने पूछा, इनकी पत्नी को पूछा, मैं ले जाऊं ना? तब मैंने पूछा, जयेश इतना प्यार? महाराज साहब प्यार की बात नहीं, मगर इनके साथ शादी करके मैं दुखी हुई हूं। महाराज साहब आप तो शांति से साधु जी को निकालो, आपको डिस्टर्ब कर देगा वो। मैं प्रवचन कर रहा हूं इसलिए तुम मेरा सामया नहीं कर रहे हो। हजारों साधु जिन शासन में ऐसे कि जो प्रवचन भी नहीं करते, पुस्तक भी नहीं लिखते, मगर लोग सम्मान के साथ उनका आदर और सत्कार देते। इनका एक ही कारण, दे आर रेडी, दे आर हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। भगवान को घर में लाने के लिए, मन को मंदिर बनाने के लिए पहली कंडीशन हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, मुझे थोड़ा सिंसियरली हिम्मत में बताओ, दिक्कत क्या है? आज वो थोड़ी बात आपसे करना चाहता हूं। यहां बैठने वाले को मैं बताना चाहता हूं, 2 तरीके के प्रॉब्लम है आपके सामने। पूरा मस्त रहने के लिए आपको थोड़ी की दिखाता हूं। मेरे और आपके जिनमें 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं। 1 प्रॉब्लम वो है कि जिनका कोई सॉल्यूशन दूर 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 तक है भी नहीं और दिखता भी नहीं। हो सकता है कौन सा? एक्स फॉर एग्जाम्पल, शाम को 6 बजे सूर्यास्त हो जाता है, इनका कोई सॉल्यूशन आपको पसंद हो या न हो, अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है, और आप बोलो मानस साहब सूर्यास्त तो बहुत जल्दी हो जाता है, आपके हाथ में कुछ है नहीं, दूर दूर तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है नहीं। आप एक काम करो, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है उनको प्रॉब्लम मानने के लिए मन को ना बोलो। यू आर रेडी फॉर दिस? बात गंभीरता से कहना चाहता हूं, जो प्रॉब्लम का दूर 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 तक आपको सॉल्यूशन नहीं देता, आप बोलो मानस साहब वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। सूर्यास्त तक कितना भी जल्दी होता है, मैंने देख लिया, इनका कोई सॉल्यूशन मानस साहब है ही नहीं, और उनको प्रॉब्लम मानने का बन। शायद बोलो आपके पास ये ताकत है, शरीर में शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ भी है, हर तरह के प्रयास करने के बाद भी डॉक्टर ने भी बोल दिया जिंदगी भर तक आपके साथ ये रोग रहेगा। आप बोलो मेरे शरीर में शुगर है, मगर प्रॉब्लम मैंने नहीं बनाया, क्योंकि उनका सॉल्यूशन दूर दूर तक मुझे और डॉक्टर किसी को नहीं दिखा पड़ता। यू आर रेडी फॉर दिस? साथ बोलो इतना तो बताओ, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूर दूर तक नहीं दिखा देता है, महाराज साहब उनको प्रॉब्लम मानने का हमने बंद कर दिया है। Therefore we are happy। ये ताकत आपके पास है। मैं विहार करके जाते हैं ना जैसे, और कभी कभी वो गांव के लोग बोलते हैं महाराज साहब रास्ते में पत्थर बहुत है, एक बार पूछ भी लेते, दूसरा कोई रास्ता नहीं महाराज साहब, कोई रास्ता नहीं, यही रास्ता है, बाकी दूर का रास्ता महाराज साहब 35 किलोमीटर बढ़ता है। और हम बोलते हैं 35 किलोमीटर लंबा बढ़ता नहीं जाना चाहते, ऐसी रास्ते। और फिर मैं बताऊं दीपक भाई, वही रास्ते पत्थर वाले रास्ते पे जाके कोई गाली नहीं, चेहरे की मस्ती के साथ पक्का हो गया ये पत्थर दूर होने वाला नहीं है और हम रास्ता बदलने वाले नहीं है, फिर गाली दे करके चलना के मुस्कान के साथ चलना, इट डिपेंड्स ऑन मी, और हम बराबर मुस्कान के साथ चल दे। आपके पास ये ताकत है, जो प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है उनको प्रॉब्लम मानने के लिए मन को ना बोल दो, नो प्रॉब्लम। इतनी बड़ी सभा में बैठने वाले को मैं सच बोलो, ये टेक्निक आपके पास है, मैं मेरी टेक्निक की बात करना चाहता हूँ। साधु जीवन में वाई वी आर हैप्पी इन ऑल सिचुएशन, इनका राज मैं बताना चाहता हूँ। महाराज साहब ये मस्ती कहां से आती है, इनका राज मास्टर की।
50 लाख रुपए का आपका पेमेंट रुका है एक्स फॉर एग्जाम्पल, आप उनको प्रॉब्लम मान करके बस रोज मानसिक डिस्टर्ब हो रहे हो, मगर एक बात चेक कर लो, एनी सॉल्यूशन इज देयर। और वो आदमी झोपड़पट्टी में रहने के लिए निकल गया और आपको लगता है कहाँ मेरा 50 लाख और कहाँ उनकी झोपड़पट्टी, जिंदगी भर तक वो काम करेगा तो भी मेरे 50 लाख को दे नहीं पाएगा। आप मन से उनको प्रॉब्लम मानना बंद करो और आपकी हैप्पीनेस निश्चित। यू आर रेडी फॉर दिस? आप मुझे जवाब दो, हाँ या ना। साथ बोलो तो जिस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है उसमें आपकी मस्ती बनी रहती है। कई लोग मुझे आके पूछते महाराज से मंदी कब तक चलेगी? मैं बोला मेरे हाथ में है क्या? क्या है? ओके सो ढूंढो, मगर नहीं है तो क्या? मैं कहां सॉल्यूशन की ना बोलता हूं, शोधो ना, ढूंढो। मगर एक बात बताओ, सच बोलो, तेरे शरीर में रोग हो तो वकील के पास जाएगा कि डॉक्टर के पास जाएगा? सॉल्यूशन लेने के लिए कहां जाएगा? एक करोड़पति आदमी का बेटा भाग रहा था और मर्सिडीज में जा रहा था, इनकी चप्पल टूटी हुई, चप्पल। और रास्ते में एक चप्पल वाला बेटा ना मोची, वो उसको लगा उनको भी तो चैलेंज देने दे, नीचे उतर गया, मर्सिडीज में उतरा नीचे, तो चप्पल वाले ने लगा इनकम ज्यादा होगी, मगर उसने अपने पैर में चप्पल थे टूटे हुए बिल्कुल, उसको बताया रिपेयर करना है। चप्पल की पोजीशन देके उसने बोला ये चप्पल रिपेयर नहीं हो सकता है, हर जगह से टूटे हुए चप्पल, तू यहाँ ये मर्सिडीज की गाड़ी और इसमें ये चप्पल, मगर ये चप्पल रिपेयर नहीं होगा। उसने बोला करना ही है, तू बोल ना कितना रुपया चाहिए, तू बोल इतना, 100, 200, 500, 1000, 10,000 बोल, 10,000 देने के लिए चप्पल रिपेयर करना पड़ेगा। मैं उसने बोला होता ही नहीं है, ये इतना बिगड़ा है। तब वो लड़का इस अभी नई जनरेशन वालों का कई स्कूल में पढ़ के आएगा, उसने बोला अभी मैं स्कूल में पढ़ के, नेपोलियन की डिक्शनरी में कोई इम्पॉसिबल शब्द नहीं था, अभी वो नेपोलियन का रेफरेंस यहां देता है मोची को। ये कॉलेजल लड़के की खोपड़ी की बात करना चाह रहा, और वो मोची भी इनका बाप निकला। और उसने बोला फिर से तुम बोलो तो क्या बोले थे? उसने बोले नेपोलियन की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द न था। नेपोलियन बोलता था कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो उसने बोला एक काम करो, आपके चप्पल नेपोलियन को ही दे दो। मैं नहीं करता। दो बात, नंबर 1, जिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको प्रॉब्लम मानने का बंद करो। नंबर 2, और जिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिखाई पड़ता है उनको सही मार्ग पे सॉल्व करने का प्रयास करो और रिजल्ट जो आवे वो स्वीकार करो। समझे? 4 डिग्री बुखार है, मैं ये नहीं कहता हूं कि इनका कोई सॉल्यूशन ही है, डॉक्टर है, दवाई है, डिस्पेंसरी है, लैब है, जो भी है वाह। आप दूर दूर तक जाकर के जो भी बोले, लैब वाले बोले, ब्रिज कैंडी बोले, अमेरिका बोले, वहां तक में भी पॉसिबल तुम चले जाओ। मैं ये नहीं कहता हूं जिंदगी को खत्म करो, मगर इतना प्रयास करने के बाद भी यदि आपका डिसीज कम नहीं हुआ, यू एक्सेप्ट दिस, ओके। मैंने हर संभव प्रयास किया, दुनिया में जितने भी उपाय थे वो हर संभव प्रयास किया, प्रयास करने के बाद जो रिजल्ट आया ना IMFP, सच बोलो इतनी ताकत मैं ना नहीं बोलता। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, साधना की मोनोपोली साधु की हो सकती है, समाधि की मोनोपोली किसी की नहीं है। आप भी तो रख सकते हो। साधना के क्षेत्र में मैं भी पॉसिबल, हम आपसे आगे हो सकते, मगर समाधि मेरी है वही समाधि आपकी बन सकती है। बस इतनी 2 ही कंडीशन, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनका सॉल्यूशन निकाल दो और जो नहीं है उनके लिए एक्सेप्ट कर दो। चलो आगे। एक छोटा सा प्रश्न यहां बैठने वाले को, प्रवचन बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ सच बोलो, इसी प्रवचन की समाप्ति में बाहर निकलो पता चले कि चप्पल गया। नहीं, इसमें कोई दुख की बात क्या है, इसमें हंसना क्या है? हाँ क्या हुआ? गया ना। हाँ तो मैं अलग बात, मैं अलग, सच बोलो जिंदगी में पहली बार तुम प्रवचन में किसके कहने से आए? आते नहीं थे, और जिस दिन आए उस दिन प्रवचन आप सुन के गए और चप्पल गया। अभी मैं दूसरा कुछ नहीं पूछना चाहता हूं। शाम को यदि कोई मिले और बोले, आपको वो पूछे प्रवचन कैसा रहा, आप क्या बोलेंगे? बस हो गया पूरा, मेरा प्रवचन टॉप रहा, वो नहीं ना, आज क्या बोलेंगे? बस इतनी मानसिकता तुम्हारी है प्रवचन की।
हु यू आर। आप ये नहीं बोल सकते अब्जों रुपया देने के बाद भी जो प्रभु के वचन सुनने के नहीं मिलते थे वो वचन मुफ्त में मिला। मैं जन्म से 60 साल की उम्र तक ऐसा सॉल्यूशन किसने नहीं दिया, वह सॉल्यूशन आज गुरुदेव के प्रवचन में मिल गया। चप्पल की बात तुम करते भी नहीं और ये बोलते चप्पल सिर्फ यहाँ ही जाता नहीं है, कहीं से भी चप्पल चला जाता है, मगर प्रवचन तो यही ही मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। चलो आगे। नंबर 1 में आपके कितने परसेंटेज बोलो, शायद प्रतिशत 90, 80, 70, 60, क्या क्या लगता है आपको? हैप्पी इन ऑल सिचुएशन इज द फर्स्ट कंडीशन। हमारे मन को मंदिर बनाने की पहली शर्त यह है कि हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। कोई नहीं, किसने बोला? किसने बोला इच्छा करने की? और इच्छा करने से दुख आया तो ये इच्छा कर, कभी दुख नहीं आएगा। चलो आगे। ये बार वाले मुझे पूछते बड़ोड़ा में प्रवचन में कैसा रहता है, मैं बोला बहुत मजा आती है। 1 महीने से क्लास लगा के बैठा हूं, बस टीचर आगे जा रहा है, स्टूडेंट वहीं बैठे। क्या हुआ? क्या है? 4 महीने के बाद? हाँ ठीक है, मिले ना मिले वो तुम्हारा। एक बार बताऊं आपको, आप थोड़ी गलत फहमी में हो। नहीं मैं बताऊं, आपका परिवर्तन आ जाए इसलिए मैं नहीं बोलता हूं। अगले जन्म में प्रभु का वचन मुझे मिलता रहे इसलिए मैं बुकिंग करा रहा हूं अभी। तो मेरे परिवर्तन की कौन सोचता है? हाँ, हमारे वहां उपाध्याय यशोई मां ने शब्द लिखा है कि जिनका विनियोग करेंगे वो अगले जन्म में आपको मिलेगा। आप जो देते चलो अगले जन्म में निश्चित आपको मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा। मैं प्रवचन देता हूं आपके परिवर्तन के लिए नहीं, और परिवर्तन के लिए प्रवचन दिया होता ना तो कभी का मैंने बंद कर दिया होता। मैं प्रवचन मेरी मस्ती के हिसाब से देता हूं और अगले जन्म में मुझे प्रभु वचन चाहिए और इसलिए मैं प्रवचन की डिलीवरी करता हूं ताकि इसी जन्म में मेरा बुकिंग हो जाए, अगले जन्म में पक्का हो जाए। आपका परिवर्तन 4 महीने के बाद भी न हो, आई विल बी हैप्पी। हो तो भी मैं राजी, नहीं हो तो भी राजी, वो प्रश्न तुम्हारा है। आप ये मत माना कि तुम्हारे लिए मैं प्रवचन कर रहा हूं। समझ गए? नंबर 1 हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। नंबर 2 एग्जाम कम्स एवरी टाइम। स्कूल की एग्जाम, कॉलेज की एग्जाम, कोई भी एग्जाम, इनके बीच में गैप रहता है, निश्चित समय रहता है। जून में आएगा, जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, सितंबर में एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी जल्दी। यहां प्रति समय एग्जाम, प्रति समय, ना मालूम कौन सी एग्जाम आ जाए। परमात्मा के मंदिर में गए, 22 साल की लड़की उद्भट वेस्ट पहन के आई, एग्जाम आई। भगवान के मंदिर में बेकार कपड़े पहन के कोई लड़की आई, आपकी आंखों के लिए एग्जाम आ गई। यदि वहां विकार पैदा होगा, भगवान का मंदिर भी तुम्हारे लिए सफल नहीं बना। बड़े मजे से जा रहे थे और किसी गलत मित्र की सोबत लगी और उसने कलम दिखा दी, चल ये एग्जाम आई। एग्जाम कम्स एवरी टाइम। यू आर रेडी? महाराज साहब कभी भी एग्जाम हुए, महाराज साहब हम पास हो जाएंगे गारंटी के साथ। मैं पूछना चाहता हूं, नहीं प्रशांत भाई बोलो, ये एग्जाम का कोई टाइम फिक्स नहीं है। तप में आ जाता है, त्याग में आ जाता है, ब्रह्मचर्य में आ जाएगा, शादी में आ जाएगा, कोई भी जगह एग्जाम आती रहेगी और उसमें आपको पास होना है। भगवान बोले यदि एग्जाम आई और तूने हाथ खड़े कर दिए, बात गया, और मैं तेरे मन में आ नहीं सकता हूं। मन में आने के लिए पहली कंडीशन, एग्जाम कम्स एनी टाइम। भगवान आने के लिए तैयार है, मगर भगवान बोलते तू एग्जाम के लिए रेडी है क्या? मैं आपको पूछना चाहता, सच बोलो, आपको क्या लगता है बच पाएंगे? बच पाएंगे गारंटी के साथ पूछना चाहता हूं। आप जा रहे हो रास्ते में और किसी लड़की 22 साल की आई, आप 100% आपको नीचे रख देंगे गारंटी के साथ।
सीधा साधा आपका धंधा चलता है। किसी ने बोला यार साइड बिजनेस कर दे, 5 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, ना बोलने की ताकत। मैं पूछना चाहता हूं आपकी मानसिकता क्या है। एक छोटा सा प्रश्न, अभी अहमदाबाद का एक लड़का मेरे पास है, मुझे आनंद आया। देखो ये भी एक ताकत है। माना साहब झूठी नोट बाजार में चलती है और बिजनेस करते माना साहब कभी हमारे हाथ में भी तो झूठी नोट आ जाती है। यहाँ बहुत गंभीरता से मैं कहना चाहता हूँ, माना साहब आप जो एग्जाम की बात करो उसमें हम पास नहीं, मगर इतनी छोटी एग्जाम में पास होने का हमने तय किया है। मैंने बोला क्या? माना साहब एक बात बताऊं, आपके प्रवचन कितने महीनों से कितने सालों से हम सुन रहे, आपके नजदीक है, और आप जो बोलते हैं ऐसी एग्जाम में पास होना माना साहब हमारे लिए करीबन इम्पॉसिबल, मगर डिफिकल्ट तो है, मगर माना साहब जिंदगी भर का एक नियम दे दो। मैं सच बताऊं, इनका पराक्रम कल पे देख करके मैं खुश होगा। अहमदाबाद का लड़का, उसने बोला माना साहब झूठी नोट जीवन में कभी भी बिजनेस करते आ जाएगी, 1000 रुपया तक झूठी नोट आएगी, मैं फाड़ के फेंक दूंगा, उनको किसी दूसरे के पास नहीं करूंगा। इतना नियम जिंदगी भर तक दे दो। सच बोलो, ये मामूली बात है क्या? 1000 रुपए की जब तक झूठी नोट आएगी तब तक माना साहब वो पास नहीं करूंगा, अपने आप से मेरे हाथ में ही लेकर के फाड़ दूंगा। दूसरे ने भले मुझे दिया मगर मैं झूठी नोट आगे नहीं चलाऊंगा। ये भी तो ताकत है ना। सच बोलो, आपके पास इतनी ताकत? क्या पूछना चाहता हूं, क्या बोलो? क्या है? पचकाना पी दूं? अभी ये पचकान तो लेंगे ना, मगर नोट लेने के पहले पक्का करेंगे, झूठी देगा उसको हड़ी तोड़ ना लेंगे। क्या है? क्या उनको रिक्वेस्ट क्या करेंगे? वापस ले यूं, और वापस लेके जो तूने मुझे दिया था वो माफ, ऐसा बोल देंगे। एक चीज में एग्जाम, एक तुम्हें मालूम नहीं, मैं ऐसे लोग देखे जिनको देख करके वेदना होती कि इनके हृदय तक प्रवचन कभी गया ही नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं साधु जीवन की बात कर रहा हूं। जिस दिन गुरुदेव भगवान भानु सिंह जीवन थे, आपके साथ मेरा चातुर्मास था। संपन्न परिवार की ओर से उपदान तप की आराधना डिक्लेयर हो चुकी थी। तुम समझते हो, आपके शरीर पे कपड़े को मैं नहीं बदल सकता, मगर आपके मन को तो बदलना आपको ही चाहिए ना। हुआ क्या मालूम? कल्पेश उपदान तप की आराधना का मुहूर्त लिया गुरुदेव के पास, और गुरुदेव ने मुहूर्त दिया, इस दिन से उपदान तप की आराधना शुरू कराओ। और जिनकी ओर से उपदान तप हो रहा था उनकी ओर से लड्डू की प्रभावना थी। मैं जो बताना चाहता हूं, किसी को गाली मत देना, कमेंट मत करना। लड्डू की प्रभावना, अभी लड्डू तो वो खुद तो नहीं बनाता है, किसी को ऑर्डर दिया होगा, और वो लड्डू जिसने ऑर्डर दिया था उसने लड्डू में से 2-5 था, और प्रवचन में खर्च पब्लिक के बीच में वो लड्डू की प्रभावना हुई। इस आदमी के दिल को लेकर के भगवान को कहने का मन होता है, भगवान इतना सड़ा हुआ दिल किसका हो सकता है क्या? और किसी भी कारण से दीपक भाई वो छोटा लड्डू एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में गया और उसने 2 को टैली किया, तेरा बड़ा, इनका बड़ा, आगे वाले का बड़ा, मेरा अकेला का छोटा। ये रजोरण मेरे हाथ में, सौदरमा स्वामी की व्यासपीठ पे मैं बैठा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। वो आदमी कल्पेश वो लड्डू लेकर के पूरे गांव में घूम गया बिना खाए। हर घर में जाकर के उसने बोला, इस व्यक्ति के उपदान में कोई दाखिल मत होना, ऐसा लड्डू खिलाने वाला है बदमाश आदमी। एक छोटा सा लड्डू को लेकर के 40 लाख रुपया का जिसने उपदान में खर्च किया, उनकी गुडविल समाज के बीच में आदमी ने बिगाड़ के खलास कर दी। ऐसा उपदान कराने वाला छोटा लड्डू वाला, यह बदमाशी। मैंने पहले बोला था, फिर से बताना चाहता हूं, इसी सभा में मैं बोला था, केले खाने से ताकत बनती है, मगर केले के छिलके पे पैर रखने से हड्डी टूट जाती है।
केला खाओ हड्डी मजबूत बनेगी, मगर केले के छिलके पे पैरों को खलास। सारी दुनिया का ये धर्म केले जैसा है। धर्म का स्थान गुरु भगवान देव और गुरु और धर्म केला है। आई यदि इनकी उपासना करो तुम्हारा जीवन मजबूत बन जाएगा, मगर इनकी आसाधना का पाप किया जीवन खलास हो जाएगा तुम्हारा। एग्जाम कम्स एवरी डे। मैं तो सिर्फ छोटा सा प्रश्न पूछ के आगे चलना चाहता। सच बोलो, आपके परिवार के सभ्य में, आपके खुद के घर में एग्जाम होती है तो इसमें पास, चलो दुनिया की बात छोड़ो, यहां बैठने वाली माता और बहनों को पूछना चाहता हूं, यहां बैठने वाली बहू को पूछना चाहता हूं, आपकी सास ने आपको कुछ बोल दिया, एग्जाम में पास, परिवार का सभ्य ने बाहर की तो एग्जाम नहीं, आपके बेटे, आपकी बेटी, आपकी देरानी, आपकी जेठानी, उनकी एग्जाम आ चुकी है, और बहू ने कोई बोल दिया सास को, बहू ने सास को बोल दिया, सास इतनी बोलेगी कि बहन बराबर है, मान लिया कि मेरी गलती थी कि नहीं थी, तूने आज मेरी कसौटी की, आई विल बी पास। या बैठने वाले को पुनः सच बोलो, फैमिली में पास? राजेश भाई, क्या फैमिली में पास? ओनली इन फैमिली मेंबर्स बिटवीन? नहीं, सच बोलो क्यों नहीं? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, फैमिली मेंबर्स में इतनी छोटी, रोज जिनके साथ बैठना उठना होता है, जो बहुत कॉपरेट तुम्हें करता है, और उनके लिए उनकी ओर से एग्जाम आई पास।